في بدني زوفا فقلت له عزك بالله يا بتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيت بالكساء اليماني فقدت به وسرت أنظر إليه وعزا وجهه يطلع كأنه بدر في ليلة تمامه بكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكسوة فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا من جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقيع ابن رسول الله تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قضى برسول الله بطرف الكساء
وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرج السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وفتحهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله خذنا فاعز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا
نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر قبرنا هذا في من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همنا ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وغفر له حاجته فقال علي إذن والله حفظنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا والسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة आज मख्तल में फकत बात तुम्हारी होगी अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको बना दो ज़ैनब दीदी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको बना दो ज़ैनब हाथ पाबंद रसन बहन तुम्हारे होंगे मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे तीर किस तरह निकालोगी बताओ ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको बना दो ज़ैनब दीदी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको बना दो ज़ैनब मेरे लाशे की रहेगी तुम पहचान बहन चाकर लो मेरे कुर्ते का गले चाकर लो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन कोई लूटे नहीं से ऐसा बना दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको बना दो ज़ैनब दीदी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको बना दो ज़ैनब सामने अपने सकीना से उतरवा लो गहर देर में लुट जाएगा मजलूम का घर अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब दीदी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब अपने हाथों से कफन मुझको बना दो ज़ैनब बाहर आने को न ख़ैमे में कहता तुमको होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको होते अब्बास तो तकलीफ न देता तुमको बल्कि मुझे सीट पे बिठा दो ज़ैनब अपने
कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। खैर खाने की संभालो ये अमानत बीबी, गोद में लो इस मजलूम हो रुखसत बीबी, गोद में लो इस मजलूम हो रुखसत बीबी। मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पोशाक ओला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। जब से अकबर गए बीना भी आंखों की गई, रख दे दो अली असगर की निशानी कोई, रख दे दो अली असगर की निशानी कोई। कुतबेशी का आंखों से लगा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पूछा बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। घर से शब्बीर जनाजे की तरह से निकले, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पे खड़े, सभी रोते थे तकल्लुम दर खैमा पे खड़े। जिस दम कहा मरने की रिजा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब। सलावत मोहम्मद वाले शबीह इमाम ज़मां खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मां खींचते हैं। तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं। जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर, जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर। शहीदी ज़मीं बेनशा खींचते हैं, शहीदी ज़मीं बेनशा खींचते हैं। ज़मीं के तले जिनको जाना है एक दिन, वो क्यों सर को ता आसमां खींचते हैं, वो क्यों सर को ता आसमां खींचते हैं। कहा रोके अकबर ने ऐ दर्द थम जा, कहा रोके अकबर ने ऐ दर्द थम जा। कलेजे से बासिना खींचते हैं, कलेजे से बासिना खींचते हैं। पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, पुकारी सकीना दुहाई है बाबा। सितमगर मेरी वालियां
खींचते हैं। कहाँ बेड़ियां और कहाँ पाया बे, कहाँ बेड़ियां और कहाँ पाया बे, ये लंगर कहीं ना तवा खींचते हैं, ये लंगर कहीं ना तवा खींचते हैं। कटी जाती हैं गर्दने बीबियों की, कटी जाती हैं गर्दने बीबियों की, रसन को जो ज़ारसा खींचते हैं, रसन को जो ज़ारसा खींचते हैं। शबी है इमाम ज़मान खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं। सल्लल्लाहु के करीब आप लोग जरा आगे आ जाए, आने वालों के लिए रास्ता बने प्लीज, और आगे आ जाए मेंबर के पास, और 1.5 मीटर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद।
उम्मीदवार खिल्लतो जागीर है गुलाम محمد وآل محمد सलाम अलैना क्या क्या जफा की नशा की हुई आल अली वक्त गारा कुछ शिमरती नहीं इस रिदा की खूफे में हंस करे ये सरनंगे खुदा की Hey,
बज़्मों में दस्ते बस्त खड़ा हुआ है बेड़ियों से बस के गुलगुला पैदा मजलिस हुए बाओ पुगा मगर गबाई हुजूरे यजीद बेईमान के चोबे भेजियो जागे के चोबे भेजियो जागे के चोबे भेजियो जागे छड़ी तो एक पर तन दोनों माया दे बदे तो ये कौन है कि जो बढ़ बढ़ के कर रही है कलाम वो बोली बोल मुझी से जाने क्या मेरा नाम है
होता था बाप तेरा वो बोली चाहना कैसा पितर थे मुझ पर पिता जरा आगे हो सकते हैं आप लोग, तो पीछे लोग आ रहे हैं। मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. जिसाए मुबारका की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। हम सब जानते हैं कि आया मवद्दत के नाम से जानी जाती है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मैं अपने कार्य रिसालत के हवस तुमसे कुछ भी नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत इख्तियार करो। अहले बैत से मोहब्बत करने या न करने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप मुलाज़ा फरमाएं कि आज इस दुनिया की आबादी कई अरबों तक पहुंच चुकी है। अरबों इंसान इस रुए ज़मीन पर आज मौजूद हैं। तो फर्ज कीजिए कि अगर पूरे इंसान मिलकर ये तय कर लें कि मुसलमानों के रसूल ने जिस खुदा की पहचान करवाई थी, अब हम सब मिलकर उस खुदा का इनकार करेंगे, उसकी मुखालिफत करेंगे, पूरे मिलकर, मुसलमान गैर मुसलमान किसी की खैर नहीं, सब मिलकर ये तय कर ले कि उस खुदा की हम मुखालिफत करेंगे। तो बताइए कि खुदा का इसमें क्या बिगड़ेगा? और अगर पूरे इंसान मिलकर ये तय कर लेंगे पूरी जमीन के कि अगर मानेंगे तो फकत उसी अल्लाह को मानेंगे जिसकी पहचान मुसलमानों के रसूल ने करवाई थी, तो बताइए इसमें अल्लाह का फायदा क्या है? क्या सुई बराबर भी उसकी सल्तनत में इससे इजाफा हो जाएगा? नहीं। जो मानेगा उसका फायदा है, जो नहीं मानेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल वही मसला है अहले बैत से मोहब्बत। मिलकर अहले बैत की मुखालिफत करे, उनके दर्जे घटने वाले नहीं है, इत्तेफाक कर ले, उनके दर्जों में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। ये खालिक़ कायनात का हम पर करम है कि उसने हमें हुक्म दिया अहले बैत से मोहब्बत करने का, और उसमें हमारा ही फायदा उसमें रखा है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि आज जो जदीद तरीक़े तालीम है उसमें सिर्फ थियरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि थियरी के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल भी समझाया जाता है। बच्चों को भी अगर तालीम दी जाती है, बस जरा सा मैं आपको जहमत दूं कि थोड़ा थोड़ा आप हजरात आगे आ जाएं। थोड़ा आगे बढ़िए भाई, बराबर मेहरबानी, थोड़ा सा आगे बढ़िए। राय कुछ नहीं दिए इमाम ज़माना बुलंद सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। और आ सकते भाई, गुंजाइश है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात। अर्ज कर रहा था कि आज जो तरीक़े तालीम है उसमें फकत अल्फाज से तालीम नहीं दी जा रही, बच्चों को भी तालीम दी जा रही है, तो फकत अल्फाज उनको नहीं सिखाए जा रहे हैं, बल्कि अल्फाज के साथ साथ उनको तस्वीरें भी दिखाई जाती है। मसलन लफ्ज़ शेर का उनको सिखाना हो तो उसके साथ उसकी तस्वीर भी दिखाई दी जाती है। आम लफ्ज़ उनको सिखाया, उसके साथ उसकी तस्वीरें दिखा दी, या कोई मॉडल उसका उनके सामने दिखा दिया। सेफ आप उनको लफ्ज़ सिखाना चाहते हैं, मॉडल बने हुए होते हैं छोटी क्लासों में, उसके मॉडल उनको दिखा दिए जाते हैं। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए है कि
सिर्फ डिस्क्रिप्शन से और अल्फाज से बात उतनी वाज़ेह नहीं होती जितना कि प्रैक्टिकल करा देने से या मॉडल या नमूना बता देने से बात वाज़ेह होती है। बस अल्लाह ने भी हमारी हिदायत के लिए बिल्कुल यही इंतजाम किया है। एक तरफ किताब में उसने सारे इस्लाम के उसूल लिख दिए, दूसरी तरफ रसूल और आले रसूल को उसका नमूना बनाकर हमारे सामने कहा इन्हें देखते जाओ, अमल करते जाओ। अब अगर इनसे मोहब्बत होगी तो इनका जो अमल होगा वो अमल हम अपनाएंगे। इनसे अगर मोहब्बत होगी तो हर कदम पर हम ये देखेंगे कि ये क्या चाहते हैं, इनकी मर्जी क्या है। यानी हर कदम पर यह सोचा जा रहा है, हर काम से पहले जिंदगी के हर मरहले में ये फिक्र हो रही है कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो क्या चाहते हैं। तो अहले बैत क्या चाहते हैं, तो कुरान ने कहा कि ये कुछ चाहते ही नहीं। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये वही चाहते हैं कि जो अल्लाह चाहता है। फरमाया कि इनकी मोहब्बत का क्या फायदा है, इनकी मोहब्बत का फायदा मोहब्बत करने वालों ही को है। तो अगर इनसे मोहब्बत करेंगे तो खुद ब खुद फलाह और कामयाबी का रास्ता हमारे लिए हमवार होता चला जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि मोहब्बत करो तो अहले बैत रसूल से मोहब्बत करो, और वो खुद भी इनसे मोहब्बत करता है। हदीस किस्सा आप बराबर सुनते रहते हैं कि जब पंजतन चादर के नीचे आए थे और रसूल ने चादर का सिरा पकड़ा और आसमान की तरफ देख कर कहा कि मालिक बस यही मेरे अहले बैत है, तो उस वक्त कुदरत की आवाज आई थी मलाइका को मुखातिब करके। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ मलाइका सुनो, समंदर से उठती हुई मौजें, चलती हुई हवाएं, ये जमीन, ये आसमान, ये कश्ती की रवानी, ये चांद सितारे, ये पहाड़, मैं कुछ भी खल्क न करता, मैं कुछ भी पैदा न करता, मैंने ये सब पैदा किया है तो फकत उनकी मोहब्बत में जो इस चादर के नीचे है। मैंने सब कुछ पैदा किया तो इनकी मोहब्बत में पैदा किया। तो अब जिब्राइल ने पूछा कि मालिक इस चादर के नीचे है कौन। अब कुदरत ने तारुफ करवाया और अजब अंदाज से तारुफ करवाया। कुदरत ने कहा कि ये अहले बैत नबी नहीं, ये अहले बैत नबूवत है, ये मादने रिसालत है। पंजतन में किसी का नाम न लिया, फकत फातिमा का नाम फातिमा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके बच्चे हैं। यानी जो फातिमा के रिश्तेदार हैं बराह रास्त वही आए तत्हीर के मिस्दाक। कहा कि उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके बच्चे हैं। अल्लाह ने ये सब कुछ इनकी मोहब्बत में खल्क किया। और अब मैं कहूँ कि मालिक तूने सारी कायनात पैदा की, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना, चांद सितारे और ये कश्ती की रवानी, ये दरिया, सब कुछ इनकी मोहब्बत में है। तो अब पंजतन में से तो कोई बाकी नहीं है, ना अली रहे, ना फातिमा है, ना रसूलुल्लाह है, ना हसनैन है। तो मालिक अब सब कुछ खत्म कर दे, लपेट दे जमीन का फर्श, हटा ले आसमान का शामियाना, बुझा दे चांद सितारों की खंदीलों को, रोक ले दरिया की रवानी। अब सब कुछ खत्म कर दे। अब किस लिए बाकी है? इसलिए कि पंजतन तो न रहे। तो अजब नहीं कि कुदरत की आवाज आए कि यकीनन हम ऐसा ही करते और सब कुछ खत्म कर देते, लेकिन अभी भी वारिसे आए तदबीर पर्दे गैब में मौजूद है। वो मौजूद है, लिहाजा ये सब कुछ है, उसी के सदक़े में ये सब कुछ है। अब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या दलील है कि वो है, तो बस दलील यही है, जमीन का फर्श बता रहा है कि वो है, आसमान का शामियाना बता रहा है कि वो है, सूरज का निकलना बता रहा है कि वो है, सितारों का चमकना बता रहा है कि वो है, फूलों का महकना बता रहा है कि वो है, दरिया का छिटकना बता रहा है कि वो है, सबसे का लहकना बता रहा है कि वो है। सलावत भेज Yeah.
रहा है उन्हीं के सदक़े में चल रहा है। और ये मजलिसें क्या है, ये मजलिसें भी बस उन्हीं की मोहब्बत में जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सितारे बनाए। बस फर्क ये है कि वो अल्लाह है, ज़मीन का फर्श बिछाता है, हम बंदे हैं, उनकी मोहब्बत में फर्श आज़ाद बिछाता है। उनकी मोहब्बत में चांद सितारों की खंदीलें रोशन करता है, हम ईमान बारगाहों में चरागे रोशन करते हैं। जो कुछ हमारे बस में है वो हम करते हैं। और ये फर्श आज़ाद, ये अजर रिसालत के अदा करने का एक वसीला, अजर रिसालत अदा करने का ही एक दूसरे। और ये एक ऐसी नेमत है हमारे पास और एक ऐसी बरकत है ये हमारे पास जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुहर्रम आता है तो रूए ज़मीन के गोशे गोशे पर दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों के उलमा और ज़ाकिरीन मजलिसें पढ़ते हैं। तो अब इन मजलिसों में इल्म का रिस्क बढ़ने लगता है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि इन्हीं मजलिसों में कुरान मजीद की आयतें हैं, उनकी तफसीर है। यही मजलिसें हैं कि जिनमें अम्बिया के वाक़यात हैं। इन्हीं मजलिसों में अइम्माए बरहक़ की सीरत बयान की जा रही है। फ़िक़्ह के मसाइल उनकी वज़ाहत भी इन मजलिसों के ज़रिए से हो रही है। सारा जो इल्म का रिस्क है वो इन मजलिसों के ज़रिए से अहले बैत के चाहने वालों के दरमियान तक़सीम हो रहा है। ये ऐसा फैज़ है कि मीर अनीस अल्लाह मुक़ामों फरमाते हैं मजलिस के ताल्लुक़ से कि क्या औज है, क्या रुतबा है इस बज़्म आज़ाद का। वल अर्श से है फर्श तलक सल्ले अला का, अब मुश्ताक़ है फिरदौस बरी यहाँ की फिजा का। पानी भी यहाँ देता है मज़ा आबे बहा का। कहते हैं कि दरबारे मुअल्ला है वली इब्ने वली का, और जारी है ये सब फैज़ हुसैन। बात कर सकते हैं हर कौम के लोगों से, दलाइल पेश कर सकते हैं वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, इसलिए मुख्तलिफ उलमा को सुनते हैं, ज़ाकिरीन को सुनते हैं। ऐसा इल्म उनमें आ जाता है हुसैन इब्न अली के सदक़े में, बचपन ही से दीन की बातें, तौहीद, रिसालत, इमामत सब कुछ उनके जहनों में बस जाती है। ये मजलिसों का सदका है और उस हुसैन इब्न अली का सदका है कि जिसने दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लुटा कर, हुसैन में अपना सब कुछ लुटा कर न सिर्फ पैगम्बर इस्लाम की मेहनतों को बचाया बल्कि पूरे 1,24,000 अंबिया की मेहनतों को हुसैन ने बचाया। यही वजह है कि जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ऐ आदम के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ नूह के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ इब्राहीम के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ मूसा और ऐ ईसा के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ अली मुर्तज़ा के वारिस तुझ पर सलाम। इसलिए कि तमाम अंबिया की विरासतें हुसैन के पास। हुसैन ने अपना सब कुछ लुटाया करबला में दीन इस्लाम को बचाने के लिए, और हुसैन ने जो कुर्बानी दी, हुसैन का जो मकसद था इस कुर्बानी के लिए, उस मकसद को इस दुनिया तक फैलाया है और लोगों में आम किया है। तो शरीकतुल हुसैन शहजादी ऐसे माहौल में जबकि पूरा घर उजड़ चुका, शहजादी हुसैन के मकसद जमीन के गोशे गोशे तक फैलाया है। आशूर के दिन फातिमा का घर ऐसे उजड़ा कि फिर आवाज न हुआ। जालिमों ने हुसैन के सर को नोके नेज़ा बच्चतन का खात्मा हो गया, लेकिन दिलों की आग ठंडी न हुई। हुसैन के खैमों को जला दिया, एक खैमे से दूसरा खैमा, दूसरे खैमे से तीसरा खैमा, यहाँ तक कि एक खैमा बाकी रह गया। तो शहजादी ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास गई, कहा बेटा सैयद सज्जाद अब तुम इमाम वक्त हो, बेटा बताओ तुम्हारा हुक्म क्या है, यहीं खैमों में रह जाएं या बाहर निकलें। तो अजीज़ान गिरामी किस दिल से चौथे इमाम ने कहा होगा कि अम्मा खैमे से निकल जाइए, जानों को बचा लीजिए। बस वो सैदानिया के चश्मे फलक ने जिसका साया न देखा आज खैमों से बाहर निकल गई। और उसके बाद 11वीं मुहर्रम से वो
का सफर शुरू हुआ कि बेकजावा ऊंट लाए न मंजिलें थी न कटावे थे। ऐसे ऊंटों पर सफर हो रहा था और फिर शहजादी पर क्या गुजरी है। कूफा आते आते ज़ैनब का क्या हाल हो चुका था। बस रिवायत मिलती है कि जब कूफे के महल्लों से, कूफे के बाजारों से लगा हुआ काफिला गुजर रहा था तो एक मरतबा काफिला एक ऐसे मकाम पर पहुंचा कि जहां वहीं पास में घर था अहले बैत के घराने की कनीज का, जिसे ब्याह कर दिया गया था। वो कूफे में आकर रह रही थी और ये लुटा हुआ काफिला वहीं कूफे पहुंचा था। और वो घर की जो मालकन थी, अहले बैत की जो कनीज थी, औरतों ने उनसे जाकर ये कहा कि बीबी चलो असीर आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं असीरों का तमाशा नहीं करती, इसलिए कि मेरी शहजादी ने मना मैं नहीं जाऊंगी। तो औरतों ने कहा कि बीबी नहीं, ये कोई आम लोग नहीं, ये लोग कोई बड़े खानदान के नजर आते हैं और ये लोग मदीने के रहने वाले। अब जो मदीने का नाम सुना दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि इनको देखा जाए कि ये कौन है और इन पर क्या गुजरी है। ये सुनकर अपने बामे खाना पर आई तो आने के बाद ये मंजर देखा कि नाखे पर एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है और वही पहलू में एक कमसिन बच्ची और वो बच्ची प्यास से बहुत बेचैन हो रही है। की कनीज है, एक मर्तबा बच्ची से मुखातिब हुई, बड़ी प्यासी मालूम होती हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। दौड़ कर एक कासे में थोड़ा पानी लिए हुए आई और पानी देते देते ये कहा कि बीवी जब पानी पी लेना तो मेरे लिए दुआ करो। ज़ैनब ने कहा कि सकीना पहले इससे पूछ लो कि इसकी दुआ क्या है। बीवी बताओ क्या हाजतें हैं तुम्हारी, क्या दुआ है। तो उसने कहा कि बीवी पहले तो ये दुआ करो कि जिस तरह तुम यतीम हो और कि खुदा कुछ ऐसे असबाब करे ताकि मैं जल्द मदीना मदीने का नाम सुना तो ज़ैनब ने भी सर उठाकर देखा, पहचान गई कि कौन है। सवाल किया था कि बीवी मदीना जाकर क्या करूं। मदीने ही में तो मेरा शहजादा हुसैन मेरी शहजादियां हैं, मदीने ही में रहती हैं। अरसा गुजर गया, उनसे ज़ियारत हुई, उनकी ज़ियारत करना चाहती हूँ, उनसे मुलाकात। ज़ैनब ने कहा कि बीवी ये बताओ अगर तुम ज़ैनब को देखोगी तो हैरत का इज़हार किया, ताज्जुब से पूछा कि मैं कैसे नहीं एक मर्तबा ज़ैनब ने जरा बालों को हटाया अब्बास क्या हुए दरबार शाम के जहां कई सालों तक इंतजार करवाया गया कि दरबार सजाया जाए। उसके बाद तो कई दरवाजे थे कि जिसमें से गुजरना पड़ा। आखिरी दरवाजा जब आया और ज़ैनब की नजर दरबार पर पड़ी, मर्तबा सैयद सज्जाद ज़ैनब इस दरबार पे कैसे आया चाहता था। बीमार इमाम ने जंजीरों को थामा, कहा कि फूफी अम्मा बाबा के सर को मुलाहिजा हुआ। हमने सर हुसैन की तरफ देखा, आंसू
कि जब एक मर्तबा शफी ने कहा, यजीद ने कहा कि मैं अली की बेटी से कलाम करना चाहता हूँ, बस इतना सुनना था कि सारी बीवियों ने एक मर्तबा ज़ैनब को घेर लिया, अपने कमरे में ले लिया ताकि आज हम हमारी शहजादी के पास नहीं रहेंगे। एक मर्तबा यजीद ने कहा कि शिम्र देखता क्या है, ताजियाना लेकर ताजियाना ली में आगे बढ़ा, बीवियों को हटाता चला गया। यहाँ तक कि रिवायत कहती है कि एक कनीज जो हबशी नस्ल थी वो ज़ैनब के सामने खड़ी रही और उसने एक मर्तबा कहा कि चाहे आज क़यामत आ जाए लेकिन मैं अपनी शहजादी के आगे से नहीं हटूंगी। यजीद ने कहा कि शिम्र क्या देखता है, उसे भी ताजियाना लगाकर हटा दे। बस एक मर्तबा इस कनीज ने यजीद की पुष्ट तो उसी के कबीले के हबशी नस्ल जवान तलवारें लिए हुए खड़े हुए थे। एक मर्तबा उनको मुखातिब करके कहा कि तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया कि तुम्हारे कबीले की एक औरत पर शिम्र ताजियाना लेकर आगे बढ़े और तुम खड़े देखते रहो। तो इतना सुनना था कि वो तलवारें लिए हुए यजीद के आगे आ गए और कहा कि ऐ यजीद, दरबार में अगर आज ताजियाना चल जाएगा तो फिर दरबार में तलवारें भी चलेगी। बस अज़ादारों इतना कहना था कि शिम्र का ताजियाना रुक गया लेकिन ज़ैनब के जिगर अफसोस नबी शादियों का शाम में जाना, सच्चा से पूछो, सच्चा से पूछो।
के शाने और सकीना का गला है रसन में सब के शाने और सकीना का गला आए पृथ्वी के लिए अब सांस लेना पार शाम का दरबार है तेरी ज़ैना खड़ी है शाम का दरबार है ओ अली असगर का सर जैसे कोई ताज़ा गली मादर बेशीर की जिस दम नजर उस पर पड़ी गोद में लेकर सुलाने की तमन्ना जाग उठी गोद में लेकर सुलाने की तमन्ना जाग उठी हाथ रासी में बंधे हैं माँ बहुत लाचार तेरी ज़ैना खड़ी है शाम का दरबार है तेरी ज़ैना खड़ी है शाम का दरबार है हर घड़ी नजरों के आगे एक कयामत है नहीं सर पभाई के बहन की है नजर टहरी हुई होठ भाषा अब अली को दे सदा दिल यही कहता है अख्तर अब अली को दे सदा आपकी बेटी को मौला एक रिदा दरकार शाम का
घबराने वाले आज दरबार में जालिम के आने स्वयं
के घराने वाले सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक सकीना सलाम सलाम अलैक सकीना सलाम सलाम अलैक दिला सलाम सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक यंके मौत सलाम सलाम अलैक यंके मौत सलाम सलाम अलैक सलाम अलैक सलाम अलैक या शेर खुदा कहाँ हो आओ या शेर खुदा कहाँ हो आओ दरबार अजीज में हरम है या शेर खुदा कहाँ हो आओ या शेर खुदा कहाँ हो आओ दरबार अजीज में हरम है या शेर खुदा कहाँ हो आओ या शेर खुदा कहाँ हो आओ दरबार अजीज में हरम है या शेर खुदा कहाँ हो आओ या शेर खुदा कहाँ हो आओ दरबार अजीज में हरम है या शेर खुदा कहाँ हो आओ या शेर खुदा कहाँ हो आओ दरबार अजीज में हरम है या शेर खुदा कहाँ हो आओ या शेर खुदा कहाँ हो आओ दरबार अजीज में हरम
कुजा अवसर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फला दस्त कुजा अवसर शबीर कुजा फला दस्त कुजा अवसर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा सुफ़े आल नबी खुद असीर जिंदा यूसुफ आल नबी खुद असीर जिंदा है सच्चा तुझा तोखे गुलू की कुजा फला दस्त कुजा अवसर शबीर कुजा फला कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फला दस्त कुजा शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फला दस्त कुजा शबीर कुजा फला दस्त कुजा शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा यूसुफ आल नबी खुद असीर जिंदा है सच्चा तुझा तोखे गुलू गिर कुजा फला दस्त कुजा अवसर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फला दस्त कुजा अवसर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फला दस्त कुजा अवसर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा करे मजलिस शाम कुजा साहिब तत्हीर कुजा फला दस्त कुजा अवसर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा कुजा Ashumre pur joro japa, Sale mama, Ashumre
शमरपुर जोरो जफा शमरपुर जोरो जफा सारे मामा तशनगी शमरपुर जोरो जफा शमरपुर जोरो जफा सारे मामा तशनगी शमरपुर जोरो जफा शमरपुर जोरो जफा सारे मामा तशनगी शब के ठीक 7 बजे यानी बाद मगरब में होरला इमाम बारगाह में झूले शहजादा उठाया जाएगा। तमाम मोमिनीन से वक्त की पाबंदी के इल्तिमा से परवरदिगार तुझे वास्ता है जिक्र खलील का इन तमाम मोमिनों और मोमिनात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में ला कोई गम ना दे वजूद गम हुसैन के बातों में क़ुव्वत हैदरी अता फरमा